जय जिनेन्द्र। श्री गुजराती केळवणी मंडल माटुंगा, श्री मानव सेवा संघ सायन, जैन जागृति सेंटर सायन माटुंगा, जैन सोशल ग्रुप सायन द्वारा चालती श्री गंभीरचंद उमेदचंद शाह पर्युषण व्याख्यानमाळाना આજે છઠ્ઠા દિવસે આપણી વચ્ચે છે ખાસ ઇન્દોરથી પધારેલા શ્રી સ્વપ્નિલજી કોઠારી. તેમનો આજનો વિષય છે બહાર और भीतर की यात्रा का संतुलन. હમણાં જ આપણે ભક્તિ સંગીત જીજ્ઞાબેન પાસે સાંભળ્યું, તેમનો અહીંયાથી ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. આજે મહાવીર જયંતિ ધીરજલાલ સોમચંદ શાહ પરિવાર ગોલાણી પરિવાર તરફથી એ નિમિત્તે ખાસ પ્રભાવનાની આપણે પ્રભાવના રાખેલ છે. તો જ્યારે હોલ છૂટે ત્યારે ચોક્કસ લોકો પ્રભાવના લઈને જાય. અને સ્વપ્નિલભાઈના આપણે તેમના પરિચય માટે હું શ્રી વિરલભાઈ ટોલિયાને વિનંતી કરીશ કે સ્વપ્નિલભાઈનો પરિચય આપે. જય જિનેન્દ્ર. સ્વપ્નિલભાઈનો પરિચય ટૂંકમાં આપવો એ બહુ કપરું કામ છે, કારણ કે એમની ઉપલબ્ધિઓ એટલી બધી છે કે ટૂંકમાં આપવી પણ હું મારો પ્રયાસ કરીશ કે જેટલું બને એટલું જલ્દી પતાવીએ. એકેડેમિકલી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે સ્વપ્નિલજી, અને તેઓ શ્રીના જીવનનું ફોકસ જો કોઈ હોય તો યુવાધનને શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન, આ સૌથી એમનું મેઇન ફોકસ છે એમના જીવનનું. ઇન્દોરમાં તેમની પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટની 7 કોલેજીસ છે અને એપ્રુવડ યુનિવર્સિટી પણ એમની પોતાની એપ્રુવડ યુનિવર્સિટી પણ છે. તેઓનો રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ પણ છે. DNN ટાઈમ્સ એમનું એક ન્યૂઝપેપર પણ છે, અને SR ન્યૂઝ કરીને એક ટીવી ચેનલ પણ સ્વપ્નિલજી ચલાવી રહ્યા છે. સ્પર્શ ફાઉન્ડેશનના તેઓ શ્રી પ્રેસિડેન્ટ છે. વર્લ્ડ પીસ કાઉન્સિલ અને નોન વાયોલન્સ, આ 2 સબ્જેક્ટ પર તેમણે યુનોમાં લેક્ચર્સ આપેલા છે. ઇન્ડિયન હંગેરિયન ડિપ્લોમેટિક રિલેશન સુધારવામાં તેમનું ઘણો જ મોટો કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. પૂર્ણ અભ્યુદય નામનું તેમનું એક NGO છે પોતાનું, જેમાં કોવિડમાં એમણે આખા ઇન્દોરમાં ખૂબ જ સારું કામ કર્યું, ખૂબ જ મદદ કરી હતી. અને તે ઉપરાંત એમનું મેઇન ફોકસ છે યુવાનોને સ્પોર્ટ્સમાં આગળ લાવવા માટે. વોલીબોલ, બેડમિન્ટન, આવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ તેઓ આ પૂર્ણ અભ્યુદય નામના પોતાના NGOમાં કરે છે. એક આપણને પણ ગર્વ થાય એવી વાત એવી છે કે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં તેમને ભારત ગૌરવ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા. સ્વપ્નિલજી એક એન્ટરપ્રેનર છે, બિઝનેસમેન પણ છે. ઇઝ અ મલ્ટીફેસેટેડ ગ્લોબલ પર્સનાલિટી. પણ બાય હાર્ટ, કે જે હું તેમને પરિચયમાં એમના પરિચયમાં છું તો હું કહું કે બાય હાર્ટ હી ઇઝ અ ટીચર. અને યોગાનું આજે ટીચર્સ ડે છે. તો આવી ગ્લોબલ પર્સનાલિટીને આપણી વ્યાખ્યાનમાળામાં દર વર્ષે પધારે છે, તે આપણે પણ ગર્વ લેવા જેવી વાત છે. હવે સ્વપ્નિલજી માઇક સંભાળશે. બહાર और भीतर की यात्रा का संतुलन. स्वप्निल जी. आदरणीय पंकज भाई संघवी, विरल भाई तोलिया, इन समस्त मंडलों के सभी पदाधिकारी, भाइयों बहनों मित्रों, मुझे लगता है पंकज भाई मैं 2015 में विरल भाई सबसे पहले आया था. 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ लास्ट ईयर में नहीं आया. हाँ, और 1 साल आप भी नहीं थे जब मैं आया था. कुछ कहीं व्यस्तता होगी आपकी. अदरवाइज तो 2015 से लेकर अभी तक अनवरत यहाँ मैं आता रहा हूँ. जब मुझे इस व्याख्यानमाला के बारे में सबसे पहले पंकज भाई से मेरा परिचय हुआ था उज्जैन में. एक कार्यक्रम में मैं बतौर वक्ता था, आप ही लोगों का कार्यक्रम था शायद.
वहाँ परिचय हुआ, फिर पंकज भाई ने मुझे बताया। तो इस व्याख्यान माला का जब मुझे सबसे पहला उल्लेख पंकज भाई ने किया तो उन्होंने कहा था कि बरसों पहले यहाँ पर इस व्याख्यान माला में रजनीश आए हुए हैं। ये सही बात है? तो जब मैंने ये सुना रजनीश और मोरारजी देसाई, तो मुझे वाकई में बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ। और फिर मैं यहाँ आने लगा तो आप लोगों से सबसे परिचय होने लगा। फिर तो पूरे ही बम्बई में मैं जाने लगा। चर्ची वीरल भाई, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मैं कब कब कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। पहले तो वीरल भाई ही डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन यहाँ, कौन से दिन आशादीप, कौन से दिन दादर। एनी विच वेज, आज बिल्कुल नया विषय हमने लिया है जिस पर हम बात करेंगे। विषय है भीतर की यात्रा और बाहर की यात्रा में संतुलन, समानांतर यात्राएं। एक नया विषय हमने लिया है, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि, और इस जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, उसका जवाब लगभग यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है। फिर भी उसी प्रश्न से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। प्रश्न बड़ा सरल है। क्या सिर्फ, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे सभी जैन होंगे? क्या सिर्फ जैन कुल में, जैन परिवार में जन्म लेने से हम जैन हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ जैन परिवार में, जैन कुल में जन्म लेने से हम जैन हो जाते हैं? बताइए, यस और नो। सबको मालूम है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे संत, हमारे प्रवचनकारी इस बात पर तो बहुत लोग बात कर चुके हैं कि सिर्फ जन्म लेने से एक परिवार में आप जैन नहीं हो जाते। आज हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि हम धार्मिक कैसे होते हैं, हम जैन कैसे होंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ पंकज भाई, कि जैन परिवार में जन्म लेने से हम जैन नहीं होते हैं। आप सब इसमें सहमत हैं? मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि जैन होने का संबंध जन्म लेने से है ही नहीं। धार्मिक होने का संबंध भी जन्म लेने से नहीं है। ये बात सिर्फ जैन होने की नहीं है, ये वैष्णव होने की भी है, ये हिंदू होने की भी है। ये बात सिर्फ जैन धर्म से संबंधित नहीं है। हम सिर्फ जन्म लेने से जैन नहीं होते हैं। जैन होने का संबंध जन्म लेने से है ही नहीं। और अब जो पंक्ति में बोल रहा हूं उसको सहेज से रख लीजिएगा अपने पास अगले 7-8 मिनट के लिए। जैन होने का संबंध जन्म लेने से नहीं है, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। जैन होने का संबंध जन्म लेने से नहीं है, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। आपको आश्चर्य होगा मेरी इस बात पर, थोड़ा सा कौतूहल होगा, पर हम अगले 7-8 मिनट में इस बात को कंक्लूड कर लेंगे कि कैसे जैन होने का संबंध जन्म से नहीं है, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। अब एक छोटी सी कहानी से अपनी बात हम शुरू करते हैं। तो वीरल भाई, ऐसा हुआ कि पहले के ज़माने में स्कूल्स तो होते नहीं थे, बहुत पहले आश्रम होते थे, वही पढ़ाई होती थी। महाभारत रामायण काल में आश्रम ही होते थे। तो 2 मित्र एक आश्रम में पढ़ते थे, दोनों बेहद विद्वान। और पहले के ज़माने में डिबेट्स, इलोक्यूशन नहीं होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ यानी किसी धर्म के विषय पर एक समूह पक्ष में बोलेगा और एक समूह विपक्ष में बोलेगा। तो 2 मित्र थे, दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, बड़ा प्रेम था और एक आश्रम में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। और वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। एक मित्र पक्ष में बोल रहा था, एक मित्र विपक्ष में बोल रहा था। बड़ी बहस हुई, बड़े बड़े तर्क दिए गए, बड़ी विद्वता पूर्वक बातें करी गई और बहस बौद्धिक रूप से ऊपर जाते चले गई, ऊंची जाते चले गई। और बहुत समय बाद जब बहस अपने पीक पर थी, चरम पर थी, शीर्ष पर थी, तो दोनों मित्रों में से एक मित्र खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं अब इस बहस में हार मान लेना चाहता हूं।
जबकि बहस बराबरी पे थी, कोई भी जीतता हारता लग नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा मैं अब इस बहस में आगे भाग नहीं लेना चाहता हूँ, सामने मेरा मित्र है और मैं उस मित्र को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इसमें से विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं ये बहस को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो दूसरा जो मित्र था सामने, उसको विजेता घोषित कर दिया गया। इस आदमी ने विड्रॉ कर लिया और जीतने वाले को तो सब तारीफ मिली, लेकिन इस आदमी को जीतने वाले से ज़्यादा तारीफ मिली क्योंकि इसने त्याग किया। क्या किया? त्याग। बड़ी रोचक कहानी है, कहानी मोड़ लेगी, अभी देखिएगा। इस आदमी को तारीफ मिली, सराहना मिली क्योंकि इसने त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। बहुत तारीफ मिली, बहुत, लगभग जीतने वाले से ज़्यादा मान लीजिए आप, उसे तारीफ मिली त्याग करने पर। ठीक है, बात यहाँ ख़त्म हो रही। दोनों विद्यार्थी थे, दोनों मित्र थे, 20-30 साल हुए, दोनों बड़े हुए। ये जिसने त्याग किया था वो बना उस राज्य का राजा। तो विरल भाई वो बना राजा, और जो जीता था वो बहस, बहुत अच्छा बोलता था, वो धीरे धीरे बोलते बोलते, प्रवचन देते देते वो संत बन गया, फकीर बन गया। क्या बन गया वो? फकीर। तो वही दोनों मित्र बड़े हुए, जिसने त्याग किया वो बन गया उस राज्य का राजा, और जो जीता था वो बन गया फकीर। अब 25 साल बाद राजा को ये मैसेज आया कि वो आपका जो बरसों पुराना मित्र है, वो फकीर जो है वो राज्य में आ रहा है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे पंकज भाई और हम बात करते हैं तो अलग ही प्रसन्नता, साल में भले ही हम एक बार मिलते हो, 2-3 बार मिलते हो, लेकिन एक वार्मथ है आपस में। तो वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा मित्र आ रहा है। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य को सजाया जाए, फूलों से सजाया जाए, रोशनी से सजाया जाए। ईरान से कालीन जो हैं बुलवाए गए और वो पूरे रास्ते में कालीन बिछाए गए, पूरे रास्ते में कालीन बिछाए गए, पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया, रोशनी से सजाया गया। राजा खुद महल के नीचे उस फकीर की आगवानी करने के लिए खड़ा हुआ। फकीर ने राज्य में प्रवेश किया। जैसे ही उसने राज्य में प्रवेश किया, सब बड़े आश्चर्य में भर गए, क्योंकि लोगों ने देखा कि उस फकीर के पूरे शरीर पे कीचड़ ही कीचड़ लगा था, और ये कोई बारिश का समय भी नहीं था, मौसम ही नहीं था बारिश का। लोगों को बड़ा आश्चर्य कि फकीर के पूरे शरीर पे कीचड़ लगा, और वो कीचड़ लगे हुए शरीर को लेकर फकीर धीरे धीरे महल तक पहुंचा। राजा ने उसकी आगवानी करी, उसको हाथ पकड़कर महल में ले गया, बड़े से कक्ष में उसको बैठाया, एक अच्छे से सिंहासन नुमा सोफे पर उसे बिठाया। लेकिन राजा के मन में भी जिज्ञासा थी। राजा ने पूछा कि भाई, आपने पूरे शरीर पर कीचड़ कैसे लगा हुआ, अभी तो मौसम भी नहीं है। तो फकीर ने जवाब दिया। फकीर ने कहा कि भाई, तुमने पूरे राज्य को सजाया और सजा के अपने वैभव का प्रदर्शन किया। तुमने जब पूरे राज्य को सजाया तो तुमने अपने वैभव का प्रदर्शन किया, तो मैंने भी कीचड़ लगाया, मैंने अपनी फकीरी का प्रदर्शन किया। मित्र थे दोनों बचपन के। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो हम दोनों में 25 साल में कोई अंतर नहीं रहा। 25 साल पहले मैंने त्याग किया था और तुम जीते थे। आज मैंने वैभव का प्रदर्शन किया और तुमने फकीरी का प्रदर्शन करा। मैंने जिस दंभ को पाकर तृप्त किया, तुमने आज फिर उसी दंभ को खोकर तृप्त किया। समझिएगा बात को। मैंने हासिल करके जिस दंभ को तृप्त किया, मैंने वो वैभव हासिल किया राजा बनकर, और मैंने हासिल करके जिस अहंकार को तृप्त किया, तुमने भी छोड़ने का दिखावा करके उसी अहंकार को तृप्त किया। तो जब हम दोनों अपने अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हैं, एक हासिल करके और एक छोड़कर, तो तृप्त तो हम अहंकार को ही कर रहे हैं। और जब हम अहंकार को ही तृप्त कर रहे हैं तो मेरे मित्र, फिर मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं रहा। जैन धर्म या किसी भी धर्म का बुनियादी आधार जो है वो स्वत्व को त्यागने का है, स्वत्व को छोड़ने का है। स्वत्व मतलब पंकज भाई, ये जो मैं है ना हमारे अंदर, मैं, अहम, अहंकार, मैं,
जैन धर्म की मूल शिक्षा संपत्ति को छोड़ने की नहीं है, स्वत्व को छोड़ने की है। स्वत्व यानी मैं, बहुत बहुत सुंदर शब्द है स्वत्व, यानी मैं। अहंकार जो हमारे अंदर होता है ना, मैंने किया, मैंने घर खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, ये मैं, इसको कहते हैं स्वत्व। जैन धर्म की मूल शिक्षा जो है वो संपत्ति छोड़ने की नहीं है, स्वत्व छोड़ने की है। क्योंकि आप अगर स्वत्व छोड़ोगे तो संपत्ति अपने आप छूट जाएगी। संपत्ति छोड़ोगे तो स्वत्व छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है। जैन धर्म की मूल शिक्षा जो है इस अहंकार के विसर्जन की शिक्षा है, इस मैं को विलीन कर देने की शिक्षा है। पंकज भाई, मैं की बदलियों के पीछे ही तो आत्मा का सूरज छुपा होता है। जब ये मैं की बदलियां छटती है तो आत्मा का सूर्योदय होता है। अध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा के स्वभाव से परिचय, यही है ना। जो भी वक्ता आएगा यही परिभाषा देगा। जब तक मैं की बदलियां नहीं छटेंगी, जब तक ये मैं के बादल नहीं छटेंगे, हमारा अपनी आत्मा से परिचय हो ही नहीं सकता है। और ये छटते ही हमारा अपनी आत्मा से परिचय होगा। जैन होने का बुनियादी आधार है इस मैं का त्याग, इस अहंकार का त्याग, इस मैं का विसर्जन, इस मैं को विलीन कर देना। क्या है जैन धर्म की मूल शिक्षा? जैन धर्म की मूल शिक्षा अहिंसा ही है ना। कि एक चींटी भी अगर आपके रास्ते में आ रही है तो उसको मारना नहीं है। हमारी दादी नानी माँ यही सिखाती है ना कि बेटा मारो मत, उसको इधर से उधर कर दो, फूंक मार दो, मारो मत। मूल शिक्षा जैन धर्म की अहिंसा की है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कौन अहिंसक हो सकता है? अहिंसक कौन हो सकता है? वही आदमी अहिंसक हो सकता है जिसने इस मैं का विसर्जन कर दिया है। सिर्फ वो व्यक्ति हो सकता है। हिंसा क्या है? आपके व्यक्तित्व में इस मैं की प्रगाढ़ता, आपके व्यक्तित्व में इस मैं की प्रचुरता। मैं ही सबसे बड़ी हिंसा है। मैं, ये जो मैं हम करते हैं ना हर चीज में, यही मूल हिंसा है। और इस एक हिंसा से सारी हिंसाएं सृजित होती है। जैन धर्म अहिंसा की शिक्षा देता है तो अहिंसा का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। अहिंसा का अर्थ है हमें दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाना है। फर्क है दोनों बातों में। अहिंसा का यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। अहिंसा का मतलब है कि हमें दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाना है। और यह तब होगा जब आपके भीतर इस मैं का विसर्जन हो जाएगा, आपके भीतर इस अहंकार का विसर्जन हो जाएगा। जिसमें भी अहंकार है ना, जो भी हर बात में मैं करता है, वो न चाहेगा तो भी हिंसा होगी। अब ये बड़ी बड़ी मजेदार बात है। अगर आपकी बातों में मैं है हर चीज में, तो अकारण हिंसा होगी। अगर आप में अहंकार है ना, तो आपके बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, वाणी में, मौन में, शरीर के हर हाव भाव में अपने आप हिंसा होगी। अपने आप दूसरों का दुख, दूसरों को आप दुखी करेंगे, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी। और अगर आपने इस हिंसा को त्याग दिया, अगर आपने इस अहंकार को त्याग दिया, अगर इस मैं का आपने विसर्जन कर दिया, तो आप सही मामलों में अहिंसक हो जाएंगे। आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे। और बस जिस क्षण आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे, उसी क्षण दूसरे भी आपको दुखी करने में असमर्थ हो जाएंगे। ये कॉर्ड काट दिया आपने, ये आपने लिंक ही खत्म कर दिया। अहंकार खत्म तो ना आप दूसरों को दुख दे पाओगे। और इसकी सबसे खूबसूरत बात है, अहंकार खत्म तो दूसरे भी आपको दुख देने में क्या हो जाएंगे? असमर्थ।
एक बड़ी रोचक कहानी और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक गुरु का बड़ा सा आश्रम था। वहाँ एक शिष्य ने उस आश्रम को ज्वाइन किया। प्रयोजन था धर्म की शिक्षा। आदमी आश्रम क्यों ज्वाइन करता? धर्म की शिक्षा के लिए। तो एक शिष्य ने उस आश्रम को ज्वाइन किया कि मैं धार्मिक होना चाहता हूँ। मैं क्या होना चाहता हूँ? धार्मिक। गुरु के पीछे पीछे चलता रहता था, गुरु की बातें सुनता रहता था, पर उसने नोटिस किया कि गुरु उसकी ओर नजर उठा के देखते तक नहीं थे। सोचता रहता मेरी ओर देखते क्यों नहीं है। एक दिन 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद गुरु ने एक आंख उठा के उसकी ओर देखा, और जैसे ही देखा उसके मन में भाव पैदा हुआ कि आज तो मेरी ओर देखा, कुछ तो है मुझ में जो मेरी ओर देखा, कोई तो बात है कि मेरी ओर देखा, मैंने कोई तो पात्रता हासिल कर ली है कि मेरी ओर देखा, कुछ तो मुझ में है कि मेरी ओर देखा। और जैसे ही उसमें यह भावना पैदा हुई कि मुझ में कुछ तो है कि मेरी ओर देखा, गुरु ने अपनी आंख नीचे कर ली और फिर बंद ही कर ली। वो बड़ा आश्चर्य में कि अरे मेरी ओर देख तो रहे थे अभी, और एकदम से आंख बंद कर ली। उसे समझ नहीं आया, तो वो किसी और के पास गया। उसी आश्रम में कोई और था, उसके पास गया और उसने पूछा कि भाई 3 साल तक तो मेरी ओर देखा नहीं, आज लेकिन नजर उठा के देखा, मैं बहुत खुश हुआ और मेरे मन में भाव आया कि मुझ में कुछ तो है कि मेरी ओर देखा। और ये भाव आते ही उनकी आंख नीची हो गई और फिर तो बंदी हो गई। तो उस आश्रम के दूसरे व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि भाई जब वो तुम्हारी ओर देख रहे थे तो तुम्हारे भीतर ये मैं का भाव पैदा हो गया कि मुझ में कुछ तो है। ये पैदा होते ही अहंकार पैदा हो गया, और तुम में अगर गुरु के कारण अहंकार पैदा हो गया तो ये पाप किसको लगा? गुरु। इस भाव को विलीन करो। इस भाव को विलीन करना बहुत जरूरी। अब उसने बेचारे ने अभ्यास शुरू करा, सब कुछ हुआ। 1.5 साल बाद थोड़ा सा पवित्र हुआ वो, तो गुरु उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। और इस बार जब गुरु उसकी ओर देखकर मुस्कुराए तो वो प्रसन्न हुआ, लेकिन उसको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि मेरी ओर देखकर मुस्कुराए क्यों। इस बार इतना अहंकार नहीं था, लेकिन मेरी ओर देखकर हंसे क्यों, मुस्कुराकर मेरी ओर देखा कि मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। आश्चर्य हुआ, और बस ये आश्चर्य जैसे ही हुआ, गुरु की मुस्कुराहट वापस से विलीन हो गई, शून्य हो गई, सामान्य चेहरा कर लिया उन्होंने और उस तरफ देखना बंद कर दिया। अब ये फिर परेशान, ये फिर गया उसी आश्रम में किसी और के पास कि यार मेरी ओर देखा, मुस्कुराए, और बस मेरे मन में ये भाव आया कि मेरी ओर देखा और मुस्कुराए क्यों। जिज्ञासा, आश्चर्य हुआ, अहंकार भी नहीं था, और मुस्कुराहट खत्म, फिर मेरी ओर नहीं देखा। तो उस आदमी ने समझाया कि भाई देखो, अब भी बाहर की दुनिया का तुम्हारे भीतर असर हो रहा है। तुम तो यहां धार्मिक होने आए हो ना, बाहर की दुनिया से स्पंदन अब भी हो रहा है। उन्होंने देखा और तुम आश्चर्य से भर गए कि क्यों देखा। यह प्रभाव है बाहर की दुनिया का। तो अगर तुम धार्मिक होना चाहते हो तो यह प्रभाव भी क्या होना चाहिए? शून्य। अब बात थोड़ी समझ में आई। उसने फिर अभ्यास किया, फिर अभ्यास किया। 1-2 साल बाद गुरु उसके पास आए, उसके सिर पे हाथ फेरा, उससे बात करी, मुस्कुराए, कंधे पे हाथ रखा और बोले कि आज जब मैंने तुम्हारी ओर देखा, आज जब मैं मुस्कुराया, आज जब मैंने तुमसे बात करी, आज जब मैंने तुम्हारे सर पे हाथ फेरा, तो तुम ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी और के सर पे हाथ फेर रहा हूं, जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूं। मैं बात तुमसे कर रहा हूं, पर तुम देख ऐसे रहे थे जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूं। और ये जो भाव तुम्हारे भीतर पैदा हुआ, ये साक्षी भाव है। तुम्हारा कर्ता भाव समाप्त हो गया और साक्षी भाव प्रबल हो गया। आज तुम सही अर्थों में धार्मिक हो गए। तो जैन होने का बुनियादी आधार मैं का विसर्जन है, अहंकार का विसर्जन है।
और ये मैं ही सारी हिंसाओं की मूल हिंसा है, इसी से सारी हिंसाएं होती है। और अगर आपने ये मैं के भाव को विसर्जित कर दिया तो आप मान लीजिए कि सही अर्थों में आप जैन हो गए। इसीलिए मैंने कहा था कि जैन होने का संबंध जन्म से नहीं है, आपके भीतर की के अहंकार की मृत्यु से है। मैंने यही लाइन कही थी सबसे पहले कि जैन होने का संबंध जन्म से नहीं है, अहंकार की मृत्यु से है, ये मैं की मृत्यु से है, ये स्वत्व की मृत्यु से है। ये आपके भीतर का अहंकार की जब मृत्यु हो जाती है तो आप सही अर्थों में जैन हो जाते हैं। इसीलिए जैन होने का संबंध जन्म से न मानकर मृत्यु से माना गया है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये अहंकार पैदा होता है, कैसे ये अहंकार पैदा होता है और ये कैसे बढ़ता है, और जीवन की समानांतर यात्राओं का विषय हमने क्यों लिया। हम इस जीवन में पंकज भाई 2 यात्राएं करते हैं, एक बाहर की यात्रा और एक भीतर की यात्रा। करते हैं तो नहीं कह सकते, करना चाहिए, लेकिन हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि बाहर की यात्रा होती क्या है और इससे अहंकार कैसे पैदा होता है। हम एक परिवार में सर जन्म लेते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर एक और स्कूल में पढ़ते हैं, फिर एक कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर एक और कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर व्यापार व्यवसाय करते हैं, नौकरी वोकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं। यही है हमारा जीवन। ये बाहर की यात्रा है। ये कैसी यात्रा है? बाहर की। और इस बाहर की यात्रा में आप जो सारी उपलब्धियां हासिल करते हैं वो विज्ञान की मदद से करते हैं। एजुकेशन को भी हम साइंस मान लेते हैं, बिजनेस को भी हम साइंस मान लेते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी, ह्यूमन रिसोर्स हम क्या मान लेते हैं सर? साइंस। तो ये सारा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है इसको हम विज्ञान मान लेते हैं। बाहर की यात्रा में हम विज्ञान की मदद से जीतते हैं और इस बाहर की यात्रा में जीतने पे हमें सुख मिलता है। सुख मिलता है। सुख का अर्थ है जो शरीर के तल पर आपको अच्छा महसूस कराए वो सुख। जो शरीर के तल पर आपको अच्छा महसूस कराए वो सुख। जैसे आपने इत्र लगा लिया, सुख। अच्छा कपड़ा पहन लिया, सुख। रसगुल्ला खा लिया, सुख। तो आप बाहर की यात्रा करते हैं विज्ञान की मदद से और विज्ञान की मदद से आपको मिलता है सुख। इसके अलावा एक यात्रा और होती है जिसे हम कहते हैं भीतर की यात्रा। ये भीतर की यात्रा आप करते हैं धर्म और अध्यात्म की मदद से। और ये धर्म और अध्यात्म की मदद से की जाने वाली यात्रा के बाद, ये यात्रा शुरू करते ही, इस यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको महसूस होता है आनंद। तो भीतर की यात्रा जो है वो धर्म की मदद से आप करेंगे और आपको महसूस होगा आनंद। बाहर की यात्रा विज्ञान की मदद से करेंगे और आपको महसूस होगा सुख। और जीवन जीने के लिए दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। सुख भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। अब इनके भेद को समझ लेते हैं। बाहर की दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसको एक शब्द में हम संग्रहित कर देते हैं, विज्ञान। ठीक है पंकज भाई? साइंस, विज्ञान। और धर्म अध्यात्म हम इसको एक शब्द में समराइज कर देते हैं, धर्म। विज्ञान विकासशील है, धर्म शाश्वत है। विज्ञान का आरंभ है और अंत है ही नहीं, कोई अंत नहीं है। कहां कहां नहीं पहुंचेंगे हम, धरती पूरी नाप ली, फिर चंद्रमा, फिर सूरज एक दिन, फिर दूसरे सौरमंडल। विज्ञान का कोई अंत नहीं है। धर्म जो है वो तो सनातन है, उसका तो ना आरंभ है ना अंत है। विज्ञान परिभाष्य है, धर्म अपरिभाष्य है। विज्ञान परिधि है, परिधि, और धर्म केंद्र है। सर्कल के बीच में जो होता है केंद्र है। विज्ञान ज्ञात और ज्ञेय की खोज है, जो ऑलरेडी है उसको और जानने की कोशिश है साइंस।
ज्ञात और ज्ञेय की खोज, और धर्म है अज्ञात और अज्ञेय में निमज्जन, निमज्जन यानी प्रवेश। धर्म है अज्ञात और अज्ञेय में निमज्जन, और विज्ञान है ज्ञात और ज्ञेय की खोज। विज्ञान अभिव्यक्ति का विषय है, अभिव्यक्ति का। आपने एक माइक्रोस्कोप लिया, उसमें आपने अमीबा को देखा, आपने समझाया बच्चों को कि देखो ये भी ऑर्गेनिज्म है, आपने एक सैटेलाइट भेजी, ऊपर गई, उससे कम्युनिकेशन होने लगा। विज्ञान अभिव्यक्ति का विषय है, लेकिन धर्म अनुभूति का विषय है। किसका विषय है? अनुभूति का। आप एक संकट में हैं, आपने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करी और संकट टल गया। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसका कोई टेंजिबल फॉर्मेट ही नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। अब कैसे इन दोनों यात्राओं में हम एक ही करते हैं अनायास, हमें मालूम ही नहीं होता है। हमें लगता है धर्म मतलब बस ये पर्यूषण के जो दिन आते हैं वो, हमें लगता है धर्म मतलब ये जो हम सुबह मंदिर चले जाते हैं सिर्फ वो, हमें लगता है धर्म मतलब वो चींटी के लिए जो रास्ता हम छोड़ रहे हैं वो बस। जितना दादा दादी माता पिता ने सिखा दिया, जितना अनजाने में बचपन से करते आए हैं, जितना थोड़ा बड़े होने के बाद हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो खुद तो करना ही पड़ता है, बस वो हमारे लिए वो धर्म है। बस हमारी भीतर की यात्रा बस इतनी ही है, और बाहर की यात्रा में तो सब लगे रहते हैं। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है? एक आदमी पैदा होता है, पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है, बिजनेस शुरू करता है, बाहर की यात्रा चल रही है। बिजनेस में वो 23-24 साल 25 साल में वो बिजनेस शुरू करता है, नया है, नौजवान है, दूसरों पे विश्वास करने की आदत होती है जवानी में। एक आदमी पे विश्वास करता है भोलेपन में, और वो आदमी ठग लेता है उसको। जिंदगी का पहला धोखा आपको मिलता है किस कारण? अपने भोलेपन के कारण मिलता है। हम सभी को मिला, हम सभी को याद आ जाएगा वो पहला आदमी जिसने धोखा दिया हमको, और प्योर विश्वास में, प्योर विश्वास में। 5, 7, 10 साल बाद हम थोड़े थोड़े समझदार हो जाते हैं, और फिर मिलता है हमें जीवन का दूसरा धोखा, और ये विश्वास में नहीं मिलता, ये लालच के कारण मिलता है। जीवन का दूसरा धोखा ये विश्वास के कारण नहीं। कोई एक जादूगर आता है, वो इतनी कुशलता से एक सपना हमें बेच जाता है, और हम और बड़ा होने की आस में जो है, लालच में जो है, धोखा खा जाते हैं। ये जीवन का दूसरा धोखा। और इसके बाद कसम खा लेते हैं कि अब हम न लालच करेंगे न विश्वास करेंगे, और समझदार तो हो ही जाता है 10 साल काम करने के बाद आदमी, ये होता है। अब देखिए सबसे मज़ेदार बात है, अब व्यापार व्यवसाय करते करते 10 साल हो गए, 2 बार आप बड़ा धोखा खा चुके हैं। पहली बार भोलेपन में और दूसरी बार विश्वास में। अब आपकी उम्र हो गई है 40 साल, और 23 साल का एक आदमी अब आपसे मिलने आया पहली बार। आप सेकंड हैंड कारों का व्यापार करते हैं, बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको मालूम है कार किस भाव पे खरीदना है और किस भाव पे बेचना है। एक नौजवान अलबेला सा, मस्ताना सा, अमीर लग रहा है, वो आया, कहने लगा अंकल एक कार दे दीजिए। आपने एक सेकंड हैंड कार 6 लाख में खरीदी अभी सुबह। आप वो बालक को दिखाते हो, उसको कार पसंद आ जाती है, वो पूछता अंकल कितने की है? आप कहते हो 10 लाख की है। और बेटा ये 10 लाख की है और ये बस आज शाम तक ही उपलब्ध है, आज शाम को जो है ये कार बिक जाएगी, शाम तक का समय है तुम्हारे पास, चाहिए तो ले लो, और 10 लाख से 1 पैसा कम नहीं करूँगा। बच्चा है बेचारा, जैसा जवानी में आपने दूसरों पे विश्वास करा था वैसा विश्वास वो आप पे कर लेता है, कार खरीद लेता है। आपने 6 लाख की कार सुबह खरीदी और शाम को कितने लाख में बेच दी? 10 में। 4 लाख कमाए उस दिन, और गर्व से आप घर लौटे और वाइफ को कहा कि आज बाहर खाना खाने चलेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आज आप समझदार हो गए, क्योंकि आपको लगता है कि आज आप दुनियादारी सीख गए, क्योंकि आज आपने खुद का शिकार किया। अब तक तो शिकार होते आए हैं आप, आज आपने शिकार किया, और आज शाम को आपके मन में एक भावना प्रबल हो जाएगी, उस भावना का नाम है मैं। क्या नाम है? मैं। बस अब आप यही करेंगे,
अब आप अपने व्यापार तो बढ़ाएंगे, व्यवसाय तो बढ़ाएंगे, राजनीति तो बढ़ाएंगे, आपको तरकीब मिल गई है। जब भी कार बेचना हो आप सामने वाले को कहते हो आज शाम तक ही उपलब्ध है, शाम के बाद ये सौदा उपलब्ध नहीं है। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, ये सिर्फ 4 घंटे उपलब्ध है, या आज शाम तक, ये सिर्फ 21 तारीख तक। जो लोग ऐसी बातें करते हैं मुझे हंसी आती। दुनिया में ऐसा कोई भी क्लॉज होता ही नहीं है। अब धीरे धीरे जब ये बाहर की यात्रा में जब आप दूसरों के साथ कपट करने लगते हैं और भौतिक संसाधन प्राप्त करने लगते हैं, तो ये अहंकार हमारे भीतर बलवती होता चला जाता है। ये है बाहर की यात्रा, जिसमें कुल मिलाकर साधन संसाधन हम इकट्ठे करते जाएंगे और शरीर के तल पर हम मिलने वाले सुख इकट्ठे करते जाएंगे। अब जिंदगी में टर्न आता है, 55 साल के हो गए आप, पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया, सारे सुख है, घर है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ है। बेटी बड़ी हो रही है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन बेटी के विचार और आपके विचार मिलते नहीं हैं, किसी भी बात पे नहीं मिलते। आपको लगता है कि उसको जो है साइंस पढ़ना चाहिए, उसको फैशन पढ़ने में इंटरेस्ट है। आपको लगता है कि एक तरह से पहनावा होना चाहिए, उसको लगता है कि आधुनिक पहनावा होना चाहिए। हर बात पर आपके और बेटी के मतभेद हैं। पिता पुत्र के मतभेद हो या पिता पुत्री के मतभेद, पिता इस बात से दुखी तो होता है। अब आपके जीवन में दुख आया, क्या आया? दुख। शरीर के तल पर जो आता है वो सुख है, राइट? आत्मा के तल पर जो अच्छा आपको महसूस होता है वो आनंद है। उल्टी बात है, शरीर के तल पर अगर आपको महसूस हुआ तो वो कष्ट है, जैसे दांत में दर्द है तो कष्ट है। लेकिन संताप जिसे हम कहते हैं, आत्मा के तल पर कोई बात आपको कचोट रही है तो वो दुख है। अब आपके जीवन में जब दुख दस्तक देता है तो ये बाहर के सुख सारे इकट्ठे करके भी उस एक दुख का नाश नहीं कर सकते। एक दुख जीवन में है, बाहर के सारे सुख इकट्ठे कर लो आप, वो सारे सुख मिलके कष्ट हर लेंगे। आजकल तो क्या बाल कम हो रहे हैं तो भी पैच आ जाता है, वो भी लग जाता है, कोई समस्या नहीं, ग्राफ्टिंग हो जाती है बालों की। कष्ट हरने के लिए सुख काफी है, पर एक दुख अगर जीवन में है एक, तो उसको समाप्त करने के लिए ये जो सारे सुख हैं ये अप्रभावी रहेंगे। यहां आदमी सबसे पहली बार लौटता है धर्म की शरण में, अध्यात्म की शरण में, अनायास पहली बार। लेकिन तब तक जीवन का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है, तब तक हम लगभग 60 साल के हो चुके होते हैं। और ये हम जो आए धर्म की ओर, ये मन से नहीं आए, ये परिस्थितिवश आए। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भगवान महावीर की क्या थी? सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भगवान बुद्ध की क्या थी? इनसे पहले जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया था, याद है आपको? 4 आश्रम, और वानप्रस्थ और सन्यास, ये 3 और 4 थे। और धर्म कब करता था आदमी? सन्यास आश्रम में। कब करता था? थोड़ा वानप्रस्थ में और बाकी सन्यास में। भगवान महावीर की सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक क्रांति है वो ये है कि उन्होंने भीतर की यात्रा शुरू करी अपनी युवावस्था में, जब ओज, तेज, शक्ति, वीर्य सब कुछ प्रबल था, तब उन्होंने जो है भीतर की यात्रा प्रारंभ करी। और यही भगवान बुद्ध ने भी किया, एग्जैक्टली उसी वक्त, भरी जवानी में, भरे युवावस्था। हम भगवान तो नहीं बन सकते, पर उनके जीवन का 1% तो अनुसरण कर सकते हैं, 1%। उस 1% में ही हमारे भीतर क्रांति घटित हो जाएगी। और इसीलिए ये विषय हमने लिया है समानांतर यात्राएं। एक साथ दोनों यात्राएं, बाहर की यात्रा भी और भीतर की यात्रा भी। बाहर की यात्रा में विज्ञान है, वो सुख देगा आपको। भीतर की यात्रा में धर्म है, वो आनंद देगा आपको। गौर से सोचिए, फिजिक्स की एक बात है
केंद्र है और केंद्र के आसपास की परिधि है। केंद्र है और उसके आसपास की परिधि है। अगर आप केंद्र पर होना तो केंद्र भी है और परिधि भी है, पर अगर आप परिधि पे हो तो सिर्फ परिधि है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा सर्कल है, उसके बीच में रेडियस है। अगर आप रेडियस पे खड़े हो तो आप रेडियस भी देख सकते हो और सर्कल भी देख सकते हो, पर अगर आप सरकमफ्रेंस पे खड़े हो, अगर आप परिधि पे खड़े हो तो आप सिर्फ क्या देख पाओगे? परिधि। और यहीं से हमारा तीसरा इस व्याख्यान का तीसरा जो भाग है वो शुरू होता है कि धर्म और विज्ञान जो है वो विरोधाभासी नहीं है। ये विरोधाभासी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत विरोध विज्ञान धर्म से कर सकता है, पर धर्म विज्ञान से विरोध नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत गुस्सा बेटा माँ से हो सकता है, माँ बेटे से गुस्सा नहीं हो सकती है, क्योंकि बेटा माँ से ही तो निकलता है। बेटे की उत्पत्ति कहाँ से? माँ से। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से? धर्म से ही तो है। तो जीवन समझ रहे, इन दोनों का आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, वैज्ञानिक किस्म के लोग भी अपने जीवन में जब अनुभव पाते हैं तो वो भी धार्मिक हो जाते हैं। दो छोटी छोटी कहानियां आपके सामने और सम्मुख करूंगा, ये इस बात को और प्रबलता से कहने के लिए कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। पंकज भाई, पापा को कार्डियक प्रॉब्लम थी, आपको मालूम है, और इंडिया के बहुत बड़े कार्डियक सर्जन हैं जिनसे हमने उनका इलाज कराया। इलाज कराते कराते दोस्ती हो गई मेरी भी उनसे। तो मैंने उनको एक दिन, वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो ऑपरेशन थिएटर के जस्ट बाहर, ओटी के बाहर, एक छोटी सी कांच की, उस पर उन्होंने गणेश जी की एक मूर्ति रख रखी है। और मैंने देखा वो पूरी ओटी की वो ड्रेस पहनकर वो 30 सेकंड उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना करी और फिर ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए। ऑपरेशन हो गया, लौट के आए, फिर पापा के टेस्ट वेस्ट तब तक आ गए थे। तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि सर, आप एमडी हो, मेडिसिन हो, फ्रांस में, अमेरिका में काम किया, इस देश के बड़े डॉक्टर, आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की आपने सर्जरी करी, शीला दीक्षित जी की करी, मनमोहन सिंह जी करी, आप ऑपरेशन से पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे? उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। उन्होंने कहा, स्वप्निल जी, मैं नास्तिक था, मेरी माँ बहुत कम उम्र में चल बसी थी, मेरे घर के सामने मेरा एक दोस्त रहता था, मेरा सबसे खास दोस्त था, उसकी माँ ने मुझे हमेशा बेटे जैसा प्यार किया। मैं डॉक्टर बना तो उसकी माँ के पैर मैंने सबसे पहले छुए, शादी करी तो बीवी को ले जाके सबसे पहले उसकी माँ के पैर छुआए, वो मेरी माँ ही थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया दोस्त का कि यार मम्मी को चेस्ट में पेन हो रहा है। मैंने कहा तुरंत ही ले आ, तुरंत यहाँ अपोलो ले आ, और वो माँ को अपोलो लाया। मैंने देखा, मैं समझ गया कि कार्डियक अरेस्ट था। तुरंत ही मैंने ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन दिया, और हमने तय करा कि 3 दिन बाद हम माँ की सर्जरी करेंगे। और बहुत नॉर्मल सा एक आर्टरी का ब्लॉकेज था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था, पर वो मल्टीपल जगह था, तो सर्जरी के अलावा ऑप्शन नहीं था। सब कुछ, शुगर भी नॉर्मल थी। 3 दिन बाद सर्जरी करी, बहुत अच्छी सर्जरी हुई, बहुत ही अच्छी हुई, और सर्जरी के बाद उनको होश भी आ गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने माँ से बात भी करी, मैंने कहा माँ सब ठीक हो गया है, अब ऑपरेशन भी अच्छा हो गया है। दोस्त को भी फ़ोन करा कि सब बढ़िया हो गया है, चिंता की बात नहीं, शी विल रिकवर नाउ इन 15 डेज। ये होने के बाद मैं घर चले गया। सुबह 8 बजे ओटी से फ़ोन आया कि बेड नंबर 30 पर जो पेशेंट था वो कोलैप्स हो गया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बेड नंबर 30 पर तो माँ थी, मतलब मेरे दोस्त की माँ, जिसको मैं माँ मानता था। मैं दौड़ा भागा, वहाँ गया, तब तक वो उनकी यह लीला समाप्त हो चुकी थी, वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही ऑर्डिनरी केस, उससे 100 गुना जटिल केसेस मैंने किए हैं। मेरे सर्जरी का जो रेट है 99% है, 99%। लेकिन मैं जिसे अपनी माँ मानता था, मैं उसे बचा नहीं पाया, और मैं अवसाद में चले गया, डिप्रेशन में। 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया।
और फिर काउंसलर की मदद से धीरे धीरे काम वापस चालू किया। लेकिन मैंने उस दिन के बाद से नियम बना लिया है, जब मैंने वापस काम चालू किया, जब मैंने पहली सर्जरी वापस करी 2 महीने के बाद, तो मैंने गणेश जी की मूर्ति रखी और अब हर ऑपरेशन से पहले मैं ये कहता हूँ गणेश जी से कि भगवान मैं तो निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से आप अंदर जो व्यक्ति है रोगी उसका ऑपरेशन करवाना और मेरे माध्यम से आप उसकी जान बचाना। मैं निमित्त हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हो तो सब कुछ आप, पर प्राण बचाना आप और मैं हूँ निमित्त। ये प्रार्थना करता हूँ मैं बस। आप देखिए इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टर, और कार्डियक सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो जीवन में अनुभव के बाद इस निष्कर्ष पर आया कि भीतर की यात्रा और बाहर की यात्रा दोनों होना चाहिए। और अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। ये तो हमने देखा कि वैज्ञानिक आदमी धार्मिक होता है। भगवान राम जब समुद्र के सामने बैठे थे तो उन्होंने समुद्र से अनुनय विनय किया। ये कहानी सबको मालूम है ना, दिनकर ने लिखा भी है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधीर पौरुष की आज राम के शर से। कि 3 दिवस तक भगवान राम ने पहले पूजा करी, अर्चना करी, समुद्र देव से निवेदन किया कि रास्ता दो। फिर जब नहीं माने समुद्र देव तो धनुष प्रत्यंचा पे तीर चढ़ाया, तो डरकर समुद्र देव प्रकट हुए। ये है ना, रामायण में लिखा है ना ये। तो भगवान राम तक ये मानते थे कि समुद्र में प्राण है। मानते थे कि नहीं? पर्वत में प्राण है। भगवान महावीर जब विहार करते थे तो वनस्पतियों से ऊर्जा लेते थे और वनस्पतियों को वात्सल्य देते थे। भगवान महावीर को भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वनस्पतियां उन्हें ऊर्जा देती थी सीधे, और वो वनस्पतियों को वात्सल्य देते थे। बरसों बाद ये साबित हुआ कि पेड़ पौधों में जान होती है। बहुत बात, जैनिज्म तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारे, आप समय सार पढ़ लीजिए, समय सार में ये लिखा हुआ है कि भगवान महावीर वनस्पतियों को ऊर्जा देते थे और ऊर्जा लेते थे और वनस्पतियों को वात्सल्य देते थे। सालों बाद, 2000 साल बाद विज्ञान ने साबित किया कि पौधों में तो प्राण होते हैं। तो धर्म और विज्ञान पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। और होना क्या चाहिए? धर्म के हाथों में विज्ञान का होना शुभ है। केंद्र में धर्म होना चाहिए और परिधि पर विज्ञान होना चाहिए। नींव धर्म की होना चाहिए और अट्टालिका विज्ञान की होना चाहिए। भीतर शांति होना चाहिए और बाहर शक्ति होना चाहिए। धर्म के हाथों में विज्ञान होगा तो हमेशा शुभ होगा, हमेशा हमेशा। और अब अपने व्याख्यान के अंतिम छोर पर हम आते हैं। आखिरी बात, आपको ये दोनों यात्राएं क्यों करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। बाहर की यात्रा सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करनी है, सिर्फ अपनी वासनाओं की तुष्टि के लिए नहीं करनी है, सिर्फ अपनी लिप्साओं की संतुष्टि के लिए नहीं करनी है। भीतर की यात्रा तो बहुत ही जरूरी है, करना ही होगी, लेकिन बाहर की यात्रा आपको क्यों करनी है ये जानना जरूरी है। मैं पंकज भाई ऐसे धर्म और अध्यात्म के खिलाफ हूं कि आदमी बिना जीवन के संघर्ष और चुनौतियां स्वीकार करे सीधे धार्मिक हो जाए और पलायन कर ले। ये गलत बात है। जीवन से बड़ा कोई युद्ध नहीं है। एक गृहस्थ के तौर पे जीवन जीना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इस दौर में एक परिवार को पालना, सबको खुशियां देना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो बाहर की यात्रा इसलिए करनी है क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारे अपने कर्तव्य हैं। कर्तव्य परायणता के कारण बाहर की यात्रा करनी है। आप एक पुत्र के रूप में पैदा हुए हो ना, तो माता पिता को सुख देना आपका कर्तव्य है। आपकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो उन्हें सुख देना आपका कर्तव्य है। आप जैन समाज में हो तो समाज के लिए, मंडल के लिए कुछ सकारात्मक करना आपका कर्तव्य है। आप एक हिंदू समाज को बिलोंग करते हो, हिंदुओं के लिए कुछ करना आपका कर्तव्य है। इस देश में आप पैदा हुए हो, इस देश के लिए कुछ करना
आपका कर्तव्य कुछ सकारात्मक, मानवता के लिए इस विश्व में पैदा हुए हो तो उनके लिए कुछ सकारात्मक करना आपका कर्तव्य है। बाहर की यात्रा कर्तव्य परायणता के लिए जरूरी है, और भीतर की यात्रा जो है वो संवेदनशीलता के लिए जरूरी है, कुछ ठोस आधार हो उसके लिए जरूरी है। और दोनों यात्राएं जब आप करने लगेंगे तो क्या होगा? जब आप दोनों यात्राएं समानांतर करेंगे तो क्या होगा? तो वही होगा जो स्वामी विवेकानंद के भीतर हुआ, वही होगा जो रामकृष्ण परमहंस के भीतर हुआ, वही होगा जो महात्मा गांधी के भीतर हुआ। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में दोनों यात्राएं समानांतर करी। सत्य के साथ परीक्षण जो है किताब, उसमें बहुत सारे प्रयोग भीतर किए गए और बहुत सारे प्रयोग बाहर किए गए। उपवास जो है जब आदमी करता है तो वो भीतर प्रयोग है, और उसी से सीखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह बनाया, वो बाहर का प्रयोग है। तो जब आप दोनों यात्राएं एक साथ करेंगे तो आप में पैदा होगी जागृति, जागेंगे आप। इस जीवन की सबसे बड़ी समस्या नींद है, मूर्छा है, निद्रा है। वो नहीं जो अब यहाँ से जाने के बाद हम जो सोते हैं वो नींद नहीं, हम दिन में भी सोते ही हैं, हम कोई काम होश पूर्वक करते ही नहीं हैं। हम खाना भी खा रहे होते हैं ना, तो हमारे हाथ रोटी तोड़कर सब्जी में डुबोते हैं और वो कौर अपने मुंह में हम डालते हैं, लेकिन हमें होश ही नहीं रहता। 2 दिन पहले सुबह क्या खाया था किसी को याद नहीं रहेगा। आप गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो होश ही नहीं रहता है कि रास्ते में कौन आया, कौन गया, क्या देखा। हम हर काम जो करते हैं कभी भी वर्तमान में रहकर नहीं करते हैं। मस्तिष्क चलता रहता है, या तो भविष्य में होते हैं या इतिहास में होते हैं। जब आप दोनों यात्राएं समानांतर करेंगे तो जागेंगे आप, तो जागृति होगी। जब आप खाना खा रहे होंगे तो वर्तमान में होंगे, और जो खाना घर का नौकर अगर आपको खाना परोस रहा है तो आपके मन में ये बात आएगी कि इसने भी खाना खा लिया होगा कि नहीं खाया होगा। जब आप खाना खाते खाते उसको देखेंगे तो आपके मन में भावना आएगी कि इसका भी बेटा बड़ा हो गया होगा, उसकी भी तो पढ़ाई बाकी होगी। जब आप दोनों यात्राएं एक साथ करेंगे तो जाग जाएंगे। हम कब जागते हैं मालूम है? सामान्य तौर पर तो हम सोए ही रहते हैं, सिर्फ संकट में जागते हैं। हम वर्तमान में रहते ही नहीं है, किसी भी स्थिति में वर्तमान में नहीं रहते हैं। लेकिन रात में 11 बजे एक अंधेरी गली से आप जा रहे हो अगर, और किसी ने चाकू आपकी गर्दन में अड़ा दिया, उस वक्त आप वर्तमान में आ जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि हुंडी चिट्ठी पे कितने पैसे किसको उधार दे रखे हैं। सब कौन सा बेटा बेटी की शादी के रिश्ते आने वाले हैं, सब भूल जाते हैं। बीवी से क्या नोक-झोंक हुई, सब भूल जाते हैं। कौन सा पार्टनर चुपचाप धूर्तता कर रहा है, सब भूल जाते हैं। कौन सा कर्मचारी फ्रॉड कर रहा है, सब भूल जाते हैं। फिल्म की हीरोइन भी याद नहीं आती, फिल्म भी याद नहीं, क्योंकि गले पर क्या पड़ा हुआ है? चाकू। उस वक्त 100% हम वर्तमान में होते हैं, होश पूर्वक होते हैं, क्योंकि प्राण पर बनाई है ना। अवस्था तो वही ठीक है, पर वो बिना चाकू के आना चाहिए। और वो तब आएगी जब हम दोनों यात्राएं एक साथ करेंगे, तब हम जागेंगे, जागृत होंगे। और जब हम जागृत होंगे तो फिर हमारे भी भीतर आध्यात्मिक क्रांति प्रस्फुटित होगी। तब आपके भीतर चेतना पैदा होगी, और वो चेतना भीतर से जब बाहर निकलेगी तो वह करुणा बनेगी, अवेकनिंग होगी अंदर, कॉन्शियंस पैदा होगा अंदर, और बाहर बनेगा कंपैशन। तब आपके मन में हर जीव जंतु के लिए दया होगी। जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे, गाय बैल, सबके लिए आपके मन में क्या पैदा होगा? कंपैशन। तब जब फिर ये होगा तो आपके भीतर जो श्रद्धा होगी वो बाहर विश्वास बन के निकलेगी। उल्टा भी हो सकता है, बाहर विश्वास होगा, वो भीतर श्रद्धा बनेगी। आप एक मुसीबत में हो, 2 दोस्त आए, उन्होंने आपकी मुसीबत दूर कर दी, तो विश्वास हुआ कि दोस्ती में कुछ बात है। और जब दोस्ती पे विश्वास आपका सुदृढ़ होगा ना, तो भगवान पे विश्वास और बढ़ेगा।
उल्टा भी होगा, जब भगवान पे विश्वास और बढ़ेगा ना तो दोस्ती पे विश्वास और बढ़ेगा। मतलब श्रद्धा भी विश्वास की ओर लाएगी, विश्वास भी श्रद्धा की ओर लाएगी, चेतना भी करुणा की ओर ले जाएगी और करुणा भी चेतना की ओर ले जाएगी। तब फिर क्रांति पैदा होगी आपके भीतर। तो भीतर पैदा होगी अंतर्दृष्टि और वो बाहर बन के निकलेगी दूरदृष्टि। तब फिर आप जब उपवास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हथियार है। अभी तो मैं लड़ रहा हूं अपनी इंद्रियों से, लेकिन इसे सत्याग्रह बनाकर मैं अगर आ जाऊं तो मैं फिर सरकार से भी लड़ सकता हूं। बहुत पावरफुल हथियार है, बहुत ताकतवर है। तब फिर जो है भीतर और बाहर की दोनों यात्राओं को करने से जो है एक अद्भुत क्रांति हमारे भीतर पैदा हो। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई ये बहुत धार्मिक क्रिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपने जीवन में भीतर की यात्रा आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, छोटी सी शुरुआत भी आप कर सकते हैं। और बाहर की यात्रा तो आप करते ही हैं, उसमें आपको सिर्फ मैं का विसर्जन करना है, सिर्फ अहंकार का विसर्जन करना है। मैं तो टीचर हूँ, आपने माइक दे दिया टीचर के हाथ में, तो वो अनवरत चलता रह सकता है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो हम ज़रूर कर सकते हैं, करना चाहिए। 2 4 5 प्रश्न हो तो और बात हो पाती है और बेहतर हो पाता है। मैं जो कहना था वो कह चुका हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी विषय से संबंधित। जब दोनों यात्रा करते हैं तो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। एक उदाहरण दें, मैं फिर आप बताइए एक उदाहरण, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? अगर हम आज बाहर की यात्रा तो हम कर रहे हैं, तो अंदर की अगर कोई भी छोटी शुरुआत करते हैं तो जो बाहर की यात्रा कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। जैसे गांधी जी के भी बहुत सारे आज की तारीख में लोग बोलते हैं जो डिसीजन थे, वो जो सब अंदर बाहर की यात्रा जो आपने बोली वो पैरेलल कर रहे थे, तो देयर आर सर्टेन डिसीजन वाज कंट्रोवर्शियल। तो इस टाइप की अगर यात्रा करते हैं तो जो हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं वो अंदर की यात्रा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट लाएगी, या तो बाहर की यात्रा का अंदर की यात्रा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? अगर आपने दोनों यात्राएं साथ करना शुरू कर दी तो पवित्रता आ जाएगी दोनों यात्राओं में। और यकीन मानिए जो नतीजा पवित्रता ला सकती है दुनिया में, वो नतीजा कोई नहीं ला सकता है। ट्रूथ हैज कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इट टुगेदर एंड फॉल्सहुड हैज वीकनेस ऑफ गेटिंग स्प्लिट अप। सच्चाई में अखंड रहने की ताकत है और झूठ बिखर जाता है। गांधी जी ने उस दौर में जो किया वो उस समय काल के लिए बहुत अनुकूल था। जिन्होंने उन्हें नहीं पढ़ा वही उनकी आलोचना करते। मेरा दावा है जो गांधी की एक किताब पढ़ ले वो कभी आलोचना कर ही नहीं सकता। सवाल पढ़ने का है। पढ़ेगा आदमी तो ही फिर आलोचना करे तो फिर जायज है, लेकिन पढ़ते नहीं है और लोग आलोचना करते। तो उनको आप ऊपरी तौर पे मत समझिए। जो उनकी बातें हैं कि उन्होंने 55 करोड़ पाकिस्तान को दी थी, ये सब हमें नहीं समझना चाहिए। लेकिन जो मूल चिंतन उनका पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से, और वो सत्य पर आधारित है। टोटल उनका जो पूरी फिलॉसफी है इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। मुझे एक बात बताइए, रामायण काल हो, महाभारत काल हो और आज का काल हो, मैंने कहा ना धर्म शाश्वत है। धर्म और अधर्म बदला क्या? रामायण काल में धर्म और अधर्म सेम था, महाभारत काल में सेम था, आज भी सेम है। रावण ने सीता का हरण किया, गलत था ना? द्रौपदी का चीरहरण हुआ, गलत था ना? अभी बंगाल में जो हुआ गलत है ना? तो धर्म और अधर्म नहीं बदलता है कभी भी, वो सेम रहता है। गांधी जी का पूरा जो चिंतन है वो सत्य और धर्म के ही तो पक्ष में है। सत्य, धर्म और प्रेम इसी के तो पक्ष में है। तो अगर हम दोनों यात्राएं करेंगे तो पवित्रता आएगी, हमारे काम में रचनात्मकता बढ़ेगी, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। भीतर की यात्रा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? भीतर की यात्रा आप कोई भी जिस छोटे से सेल्फलेस काम में आपका मन रमता हो, निस्वार्थ, ओके, कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे पौधों को पानी डालना भी हो सकता है। जैसे हम लोग जैन है, हमारे यहाँ कल्चर है कि हम गाय को रोटी डालते हैं ना, राइट? वहां से भी शुरू हो सकता है। चिड़िया को दाना खिलाने से भी शुरू हो सकता है। मैं तो कहता हूं संगीत सुनने से भी हो सकता है, जबकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। अच्छा सात्विक मधुर संगीत सुनने से भी वो शुरुआत है, क्योंकि निस्वार्थ है वो।
या किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताइए जिसका आपका कोई डायरेक्ट रक्त संबंध नहीं हो, उसके साथ 15 मिनट बिता लिए, मैं समझता हूँ वहाँ से भी भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। या ये जो मिच्छामी दुक्कड़म हम पर्यूषण के आखिरी दिन करते हैं, कभी साल में बीच में किसी के साथ करके देखिए। ओकेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए मिच्छामी दुक्कड़म, मतलब वो तो होना ही चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी आप किसी दोस्त को एक फ़ोन करके बोल सकते हो, यार कि उस दिन मैंने बातों बातों में तुम्हें ये कह दिया था, तुम्हारा चेहरा उतर गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। करके देखो आप। हम हमारे कॉलेज में एक पूरी गतिविधि कराते हैं जिसमें हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप अभी अगले 2 घंटे में अपने किसी एक रिश्ते को जो बहुत बिगड़ चुका है उसको सुधारिए, माफ़ी मांगकर। भाई से, बहन से, मित्र से, जो एक रिश्ता बिगड़ा हुआ है, अपनी गलती ढूंढिए, सॉरी बोलिए, उसको सुधारिए। और मैं आपको बताऊं, बड़ों के लिए मुश्किल होता है, बच्चे कर डालते हैं इसको। हाँ, सारी समस्या, सारी हिंसाओं के मूल में मैं है। एकमात्र हिंसा मैं ही तो है। मैं की प्रगाढ़ता हिंसा है, मैं को विलीन कर देना अहिंसा है। और कोई प्रश्न हो? एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। कौन सी प्रक्रिया है जो बेस्ट हो, अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा बेस्ट हो जाए? मतलब इस आपने एक दो एग्जांपल दिए जी, इसे और थोड़ा विस्तार से समझाइए। मतलब भीतर की यात्रा के लिए, बाहर के तो बहुत एग्जाम्पल हैं, भीतर के लिए ही। हाँ, दोनों समझाइए। भीतर के लिए आप किसी से, देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, उनको आप सुन लीजिए बैठकर। निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य, निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य, अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति की गई कोई भी मदद जिसके एवज में आप कुछ नहीं चाहते हैं, पशु पक्षी पर्यावरण के लिए किया गया कोई भी काम, संगीत नाटक साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम, किसी खिलाड़ी को करी गई कोई भी मदद, किसी संत को भोजन करा के, वो तो जैन समाज में हम करते ही हैं, मतलब वो तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। तो परोपकार है। परोपकार बिल्कुल, वही सत्संग सत्संग है, परोपकार है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप निस्वार्थ भाव से जो कुछ करेंगे वो भीतर की यात्रा की शुरुआत है। आपका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस तो निजी स्वार्थ नहीं। और ना ये मानकर कि मैं ये एक निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं तो भगवान मुझे इसका फल देगा, ये अपेक्षा भी नहीं होना चाहिए। वो अपेक्षा करते ही खेल खत्म हो गया, वो गुरु वाली बात हो गई कि गुरु ने देखा और नजर नीचे गिरा दी। और बाहर की यात्रा में क्या क्या मतलब? बाहर तो सर व्यवसाय है, राजनीति, बाहर में तो एंड ही नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदो आप, ये सब बाहर की तो यात्रा है, बाहर का तो कोई एंड ही नहीं है, अनंत है। करते हुए पालन। हाँ, करते रहिए, बहुत जरूरी है, बिल्कुल करिए। पर वो क्यों करना है? कर्तव्य परायणता के लिए, व्यवहार वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, वो कर्तव्य परायणता के लिए। जीवन को विस्तार देना बहुत आवश्यक है कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। माफी मांगना ज्यादा मुश्किल है कि माफ करना। देखिए माफी मांगने में साहस चाहिए और माफ कर देने के लिए करुणा चाहिए। अब आप में क्या कम है उससे तय होगा क्या मुश्किल है। आप में अहंकार बहुत ज्यादा है तो फिर आप माफी मांग नहीं पाएंगे, और आप निर्मम है तो आप माफ कर नहीं पाएंगे। आप दोनों हैं तो दोनों आसानी से करेंगे, दोनों नहीं तो दोनों मुश्किल होगा आपके। जो भी है फिर भी प्रयास करना चाहिए, मेरा कहना है। चलिए मान लेते हैं हम अहंकारी हैं, तो भी बहुत मुश्किल होता है सॉरी बोलना, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। मैंने आज से 12-14 साल पहले, 10 साल पहले दिव्यदीप को किसी बात पे डांट दिया, और इतनी बुरी तरह से डांट दिया कि मुझे रात में सोते वक्त लगा कि यार ये तो अति हो गई आज। दीदी એટલે એનો मेरा छोटा भाई है એનો નાનો ભાઈ, और मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगा कि भाई ये तो गलती हो गई आज। मैंने रात में 1 बजे उससे नींद में उठाकर माफ़ी मांगी। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, उसके लिए मुझे इतनी हिम्मत जुटानी पड़ी, इतना ईगो मारना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं, मतलब मेरे जीवन का टफेस्ट थे वो 7 कदम चल के उसके कमरे तक जाना और दरवाज़ा खटखटाना, क्योंकि अहंकार तो मारना पड़ा। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, आप उससे
पंकज भाई कभी मिले तो पूछिएगा। થેન્ક યુ. કોઈને છે બીજા પ્રશ્ન? कोई और अंतिम प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं। बाहर और भीतर की यात्रा का संतुलन. स्वप्निल भाई कोठारी હતા. जैन होने का संबंध जन्म से नहीं होते, जैन होने का संबंध मृत्यु से. स्वत्वનો ત્યાગ કરવાનો છે એ जैन धर्म. अहिंसा का मतलब हमें दूसरे को दुख देने में असमर्थ हो जाना. जीवन की दो यात्रा, बाहर की और भीतर की. बाहर की यात्रा में विज्ञान होता है और सुख मिलता है. भीतर की यात्रा में धर्म है और आनंद मिलता है. आ હતા આપણા સ્વપ્નિલભાઈ કોઠારી. બહારની યાત્રા અને ભીતરની યાત્રા. આવતીકાલે વ્યાખ્યાનમાળાનો છેલ્લો દિવસ. આપણી વચ્ચે છે સુભાષભાઈ ઠાકર. અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમણ સબ્જેક્ટ બહુ સારો છે. સંવત્સરીનો આગલો દિવસ છે અને અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમણ એટલે ફક્ત ધર્મની વાત નથી પણ આપણા કર્મની પણ વાતો છે. તો ચોક્કસ 8:30 વાગે ભક્તિ સંગીત, 9 વાગે સુભાષભાઈ ઠાકર. આજે મહાવીર જયંતિ હોવાથી શ્રી ધીરજલાલ સોમચંદભાઈ શાહ પરિવાર તરફથી, ગોલાણી પરિવાર તરફથી બહાર પ્રભાવના છે. દરેક જણાને લઈ જવાની વિનંતી. આવતીકાલે સાંજના 8:30 વાગે. જય જિનેન્દ્ર.